Hello dear student, welcome to the online class of mathematics. Dear student, today we are going to learn the next part of chapter 20 triangle. In this video we are going to see some of the remaining topics. So first topic, possibility of forming triangle. यानी अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. So the sum of the length of two side of a triangle is always greater than the length of the third side. यानी ट्राइंगल की दो साइड्स को अगर जोड़ा जाए यानी इसकी टोटल की जाए तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. तो आप समझिएगा कि वहाँ पॉसिबिलिटी है ट्राइंगल बनाने की. You can see in the given example how it is possible to form a triangle. So dear student, now we will see one example. In this example we will see that is it possible to form a triangle whose side is given AB 7 cm, BC 6 cm and AC 11 cm. So what we will do, we will add AB any two side of the triangle. So I will add AB and BC. After adding AB and BC I will get 30, and whereas AC is 11 centimeter. So these two sides having the sum of 13 centimeter. So it is greater than the third side, that is 11 centimeter. तो यहाँ क्या होगा कि आपने देखा कि दो साइड को जोड़ने पे हमें 13 सेंटीमीटर मिला और जो तीसरा साइड था वो 11 सेंटीमीटर है. तो 11 सेंटीमीटर से बड़ा है. तो इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है पॉसिबल है. टू फॉर्म अ ट्राइंगल दिस लेंथ इज करेक्ट फॉर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. So dear student, now the next topic is classification of triangle according to angles. There are three types of triangle with respect to their angles. The first triangle is acute angle triangle, or you can say acute triangle. A triangle in which every angle is an acute angle is called an acute angle triangle or acute triangle. यानी a triangle यानी जो ट्राइंगल के सारे एंगल्स आप देख सकते हैं, जो सारे एंगल्स है वो एक्यूट एंगल्स हैं. तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं. आप देख सकते हैं इस फिगर में जो एंगल A है वो 75 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है और एंगल C 45 डिग्री है. जो तीनों एंगल जो है वो less than 90 degree and more than 0 degree. So it is acute angle. So we will call this triangle acute triangle. Second topic is obtuse angle triangle. A triangle in which one of the angle is an obtuse angle is called an obtuse angle triangle or obtuse triangle. यानी ट्राइंगल यानी जो ट्राइंगल है उसके अंदर एक एंगल जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ऐसे एंगल्स अगर ट्राइंगल में पाए जाते हैं तो इस तरह के ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं. यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर दैट ट्राइंगल PQR, ठीक है, इसमें एंगल Q जो है वो 110 डिग्री है. तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है आपका ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है. बाकी आपके दो जो एंगल है वो एक्यूट ट्राइंगल है. तो जो एक्यूट ट्राइंगल में आपने देखा था कि उसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल थे और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आपके दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे और एक ऑब्ट्यूज होगा. तो जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे. So here angle Q is 110 degree. Therefore the triangle PQR is an obtuse triangle. Now the last topic of this classification of triangle
according to angle. The third one is right angle triangle. A triangle in which the measure of one of the angle is 90 degree is called a right angle triangle or right triangle. यानी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री दिखा रहा हो, ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे. यू कैन सी इन द गिवन फिगर दैट ट्राइंगल LMN, इसमें एंगल M आप देखेंगे वो 90 डिग्री है. सो हम इस ट्राइंगल को यानी ट्राइंगल LMN इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. और जो इसमें आप देख सकते हैं, कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं. So dear student, I hope you all have understood the classification of triangle. Now the last topic of this chapter is angle sum properties. According to this property, the sum of all the angles of triangle is 180 degree. यानी अगर आप ट्राइंगल के सारे एंगल्स को जोड़ते हैं तो आपको 180 डिग्री एंगल मिलेगा. फाइन. सो वी विल सी वन एग्जाम्पल विच यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज़ कि कैसे 180 डिग्री होता है. ठीक है. सो लेट अस सी, वी विल वेरीफाइड कि ये सही बात है कि नहीं. ठीक है. सो लेट अस सी a triangle ABC, it is given angle A is 65 degree, angle B is 70 degree and angle C पता नहीं. तो पता लगाते हैं एंगल C क्या है. तो ये आपको जैसे पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल इज़ 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री तो हमें पता है. तो कैसे करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस C, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A और एंगल B आपको पता है दैट इज 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री. इसका आंसर आएगा 135 डिग्री. अब एंगल C इज इक्वल टू, यानी आपका 180 डिग्री बचा है तो आप उससे 135 डिग्री को माइनस कीजिए, आपको एंगल C मिलेगा 45 डिग्री. सो ये जो आपको थर्ड एंगल अगर आपको पता लगाना है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल of a triangle is 180 degree. I hope you all have understood today's topic. If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching the video. Have a nice day.